Hi everyone, my name is Surbhi Pandey and I'm extremely shocked and surprised. Why I'm shocked and surprised is the fact that I have come to know that the ECA quota has been scrapped off from the Delhi University. I am an alumni of Hindu College because of ECA quota. I was able to get admission in Hindu College because of ECA quota. In spite of getting the highest marks all over the board, I scored 99% in political science, but I was not able to get admission in Hindu College directly. I had to appear for the ECA. I had to present my Kathak dance over there. Yes, I'm a trained Kathak dancer. I had 91.5%. In our country, even if a student scores 90%, even if the student scores 96%, it's not good enough. 98% भी अच्छा नहीं होता. उन लोगों को लगता है कि और मेहनत करो. So I just don't understand कि यहाँ पे जब आप ECA कोटा ख़त्म कर रहे हो तो talented बच्चों का क्या होगा? What will happen to the artists? What will happen to the real talent? What will happen to those people, to those students who are actually very well skilled? One of the Delhi University is known for producing one of the world's finest artists. कितने सारे चीज़ें, कितने सारे लोगों के ड्रीम्स फुलफिल हो पाए हैं बिकॉज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. एंड देर आर this feeling is a very emotional feeling because since childhood my parents have sacrificed. My parents have always stood by me. They have always supported me. They have been the pillars of my strength. My school teachers, my school friends, they have been very supportive. My principal, I am a student of DPS Faridabad. सबने मुझे मेरे डांस के लिए, मेरे आर्ट के लिए, मेरे थिएटर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मुझे सपोर्ट किया. And remember one thing, all the students who were able to give time to the extracurricular activities, they had to bear the cost. Everything was at the cost of the studies. It's not just that कि studies ही सब कुछ होता है. There are so many students who are exceptionally amazing in sports, who are exceptionally amazing in dance, singing, theatre, dramatics, creative writing. So what will happen to all of that? They have to be compensated through some special provision by the Delhi University. You cannot scrap it off. Please understand this thing. I request Delhi University with folded hands, please, अब latest technology का use कर लीजिए आप. We are not living in Baba Adam का ज़माना. Where internet is not accessible. Everybody uses mobile phone. In fact, जितने भी casting directors हैं, उनका भी काम, मतलब जितने भी actors हैं, everybody sending auditions from their homes. Self test record करके सब लोग auditions भेज रहे हैं. सब लोग अपना work from home घर से कर रहे हैं, Zoom call पे कर रहे हैं, Google Meet से कर रहे हैं. कितने सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए trials conduct कर सकते हैं. Please, it's a high time DU uses technology and finds out the ways to do the trials and to complete the ECA thing instead of scrapping it off. At least listen to the advice of our country's honorable Vice President, Mr. Venkaiah Naidu ji. He has appealed to Delhi University. I must say thank you with folded hands to Pandit Birju Maharaj ji, जिनके कलाश्रम में मैंने कुछ साल ट्रेनिंग ली. मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. सोनल मानसिंह जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं. ये सभी बड़े आर्टिस्ट हैं और भी कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो लोग सामने आए हैं. उनको पता है टैलेंट की वैल्यू क्या है. रिमेंबर वन थिंग, दिस कैन कॉज deprivation and devastation in the minds and hearts of several students who have thought कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करूँगा. कितने सारे बच्चे सैक्रिफाइस देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, उनके पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं. कितने सारे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं उनके ड्रीम्स को फुलफिल करने में. और अचानक से ये न्यूज़ आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दैट दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ सिस्टम वेयर दे कैन कंडक्ट द ट्रायल्स. सी, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज. यू हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन. टैलेंट कैन नॉट जस्ट डाई. Delhi University is known for its colorful culture. Delhi University is known for its various extracurricular activities. People are extremely amazing in dramatics, in sports, in theatre, in creative writing, in filmmaking, in dancing, in singing. कितने सारे talent है. और ये skill development की बात हो रही है ना.
आवर कंट्री इज इट सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट. ये आने वाला ज़माना जो है, आने वाला जो जनरेशन है, ये रट्टाफिकेशन और ट्रिग्नोमेट्री पे नहीं चलने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी ऑन साइंस. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग. हर चीज़ जो है मार्क्स में नहीं होती है. कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है एंड टैलेंट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड. हमारे कंट्री में आए दिन कितने ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, कितने ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, राइटर्स हैं. We have to support them. Delhi University has to support. Delhi University के ही basis पे लोग सोचते हैं कि चलो ECA कोटा है, we will get admission, we will be able to pursue our dreams, we will be able to devote more time to sports. कितने सारे students जो हैं national level पे अपने country को represent करने जाते हैं, international level पे represent करने जाते हैं. Basketball हो गया, volleyball हो गया, athletics हो गया, dance हो गया, कितने सारे celebrities हैं, actors हैं. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्री राम सेंटर से बड़े बड़े जजेस आते हैं उनका सब ट्रायल लेने के लिए. कथक केंद्र से लोग आते हैं ट्रायल लेने के लिए कि अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाई हूँ. बिकॉज ऑफ दैट आई एम एन एक्टर. आई राइट, आई लाइक टू मेक वीडियोज़. ये जो चीज़ है ना, ये मैंने उस चीज़ को फील किया है. मुझे पता है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ ऑडिशन के लिए गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए, हमें पता है हमने कितने धक्के खाए हैं. JMC कॉलेज में गई थी मैं, LSR कॉलेज में गई थी, मैंने कई सारी जगह ट्राई किया था. हिंदू कॉलेज में मेरा फाइनली जाके हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ माई ECA. देयर वर 720 or 750 स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ all of them only I think 9 or 10 students were selected. I was one of them. I am literally thankful. कितने एस्पिरेशंस होते हैं. प्लीज़ डोंट जस्ट किल द बडिंग टैलेंट. सब लोग अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, अपना मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. आप लाखों की उम्मीदें ऐसे नहीं तोड़ सकते. आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनके ऑनलाइन ट्रायल्स लीजिए, आप उनको बोलिए कि आप अपना वीडियो शूट करिए. कोई ना कोई तो तरीका होगा. आजकल it's a heartfelt, it's a personal heartfelt shocker to me that this thing has come to me and I have decided to speak on this. आप लिटरली पूरा मोरल डाउन कर रहे हो. ऑलरेडी कोविड की वजह से सब लोग अफेक्टेड हैं. प्लीज़ डोंट डू दिस. थैंक यू. इट्स एन अपील. देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट हु हैव कम फॉरवर्ड. मैं उन स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में सोच रही हूँ, उन स्कूल के एस्पिरेशंस, उन बच्चों के एस्पिरेशंस के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या फील होता है. आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. आप ये रीज़न दे ही नहीं सकते कि कोविड-19 हो गया इसलिए हम ECA ट्रायल नहीं कर रहे हैं. लोग 4-4 साल 5-5 साल से यही सोच के कोशिश कर रहे हैं कि हाँ DU में एडमिशन हो जाएगा, मैं पूरे टाइम स्पोर्ट्स पे फोकस करूँगा या फोकस करूँगी, या मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करूँगी, BA प्रोग्राम ले लेंगे या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स ले लेंगे. उसके बाद अपने ड्रीम पे फोकस करेंगे, अपना ड्रीम को परस्यू करेंगे. प्लीज़ थिंक अबाउट दैट एंड प्लीज़ थैंक यू.